Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's episode, I'm going to teach you how to write a conclusion of a 14-mark question as well as a 10-mark question in History, Paper 1, 2059 and 0448. And through this tip that I'm going to give you today, you'll be able to not only upgrade your answer from A to A star, but maybe from A star to distinction as well, because this is something that most students cannot write, and I'll try to make it as easy as possible so that you can upgrade your responses. Now, in a 10 mark and a 14 mark question, level 5 in both cases is called the conclusion. But in level 5, what is the difference between level 5 of a 10 mark and a 14 mark question? In a 10 mark question, you just have to score the 10th mark in the conclusion. Whereas in a 14 mark question, there are 2 marks reserved for the 13th and the 14th mark. Now, what's the difference between the two? If you look at the two very closely, here in the 10th mark, you have to do the same thing what you have to do here for the 13th mark as well. So they are same. I'll tell you what they are, but just trying to show you, which is why I copy pasted this so that you can see that the way you earned the 10th mark is exactly the same way you earned the 13th mark. And there is something extra that you have to do in the 14th mark, and that is exactly what we are going to learn today. Before we proceed, I would like to tell you that in a 14 mark question, as we did it in the last episode, that in a 14 mark question or in a 10 mark question, there are always two sides. One side is called L3 and the other side is called level 4. And before you move on to the conclusion, you first have to achieve the marks of level 3 and level 4, which is why you have to write pitch perfect 4 points in 1:3, 2:2, or 3:1. If you don't know how to craft the ratios well, you need to watch my video of the 14 mark question so that then you can learn how to write a conclusion. Now, to look at this, I have an example that you will easily understand, and then we'll move towards proper examples. The example is Messi was more important than Ronaldo. Do you agree? Question mark. Give reasons. And it's a 14 mark question or a 10 mark question. Both of them are structured the same way. So I believe it's a 14 mark question because 14 mark may we have to make two arrangements, and I'm going to tell you exactly what they are. So first of all, what we do is we figure out what the two sides in this question are. Anyone who is unable to know what the two sides in a 14 mark question are or a 10 mark question are, if you don't know, don't touch this question, because otherwise you're going to ruin it. Writing more does not mean you're writing it accurately or in the right structure. So as we know, the level marking 14 mark question is two sides. One is called level 3 and the other one is called level 4. So in this case, level 3 and level 4 is between Messi and Ronaldo. So what I did is Messi is L3 and Ronaldo is L4. But it can be the other way around as well. So you can put Ronaldo in L3 and Messi in L4 and it will not be a problem. Whichever of the two will be written first will become L3. So just for the sake of example, if I'm developing Ronaldo or Messi, मेसी को जब डेवलप करूंगा तो मैंने उसमें लिख दिया, मैंने एक पॉइंट लिखा कि मेसी ने एक वर्ल्ड कप जीता हुआ है, मैंने लिखा कि मेसी के पास दो जो है वो कोपा अमेरिकाज हैं और 8 बैलन डोर्स हैं. लाइकवाइज मैंने रोनाल्डो का लिखा जब मैं दूसरी साइड पे स्विच कर गया कि रोनाल्डो के पास 1 यूरो है, 5 चैंपियंस लीग हैं और 5 बैलन डोर्स भी हैं. अब जब L3 और L4 का काम पूरा हो गया, सर आपने ये 6 बातें बताई हैं, आपने तो कहा था 4 लिखते हैं. भाई एक्स्ट्रा पॉइंट भी तो लिखे जा सकते हैं ना, टू बी ऑन द सेफ साइड. तो आप एक्स्ट्रा पॉइंट ज़रूर लिखा करें ताकि आपके पॉइंट्स, अगर कोई भी पिछला पॉइंट गलत हो गया तो अगला ठीक हो जाएगा. अब कंक्लूजन लिखते हुए क्या करना है? पहली बात, वेन एवर यू स्टार्ट अ कंक्लूजन तो आपको स्टेटमेंट को एड्रेस करना है. जैसे कि अगर इस क्वेश्चन को आप गौर से देखें तो आपसे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मेसी वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन रोनाल्डो. डू यू एग्री? क्वेश्चन मार्क. गिव रीजंस. तो अब मैंने उसका जवाब देना है इस चीज़ का कि इन माई ओपिनियन क्या मेसी वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन रोनाल्डो, या फिर मैं कहूँगा इन माई ओपिनियन. एक तो स्टार्ट यूं करना है, इन माई ओपिनियन, आई बिलीव, आई कंक्लूड. फिर मुझे स्टेटमेंट का जवाब देना है कि मेसी वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन रोनाल्डो, या आप कह सकते हो रोनाल्डो वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन मेसी. फिर जब आपने ये बता दिया तो आपको उसको एक एक्सप्लेनेशन के साथ कम अज़ कम जस्टिफाई करना है. तो मैं भी आपको जस्टिफाई करके दिखाता हूँ. जैसे कि मैंने लिखा इन माई ओपिनियन रोनाल्डो वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन मेसी. तो यहाँ तक आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा. एज ही, फिर मैंने रीज़न दिया, एज ही प्लेड फुटबॉल in numerous leagues, for example, Premier League, La Liga, Serie A in Italy,
compared to Messi, who has less exposure, which is limited to Spain and MLS. सो जब मैंने ये एक एक्सप्लेनेशन को जस्टिफाई किया, इसमें आपने देखा जो ऊपर मैंने आंसर में लिखा हुआ था यहाँ पे, मैंने उसे रिपीट नहीं किया. आई हैव टू मूव बियॉन्ड इट एंड आई हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. सर तो उन्हीं पॉइंट से रिलेट करना पड़ेगा जो पीछे लिखे हुए हैं. बिल्कुल इनसे किसी ना किसी फॉर्म में रिलेट करना पड़ेगा. तो फुटबॉल से मैंने रिलेट कर दिया नीचे फुटबॉल को. तो उन्हीं पॉइंट से रिलेट करना. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि ऊपर लिखते हैं 4 पॉइंट्स और नीचे जो है 5वें पॉइंट को कंक्लूजन के तौर पे लिखते हैं एज अ 5th पॉइंट बना के, जिसका ना लेना ना देना ऊपर वाली एक्सप्लेनेशन के साथ किसी भी जगह पे है. तो आपने लिंक लाजमी करना पड़ेगा जो पीछे आपने पॉइंट्स लिखे हैं. अगर आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रहे हैं एज 5th पॉइंट जो कि आप कंक्लूजन मान रहे हैं, तो वो कंक्लूजन बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा. उसके बारे में थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं. सो अगर ये हुआ 10 मार्क क्वेश्चन तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे L5 10 मार्क्स. और अगर ये हुआ 14 मार्क क्वेश्चन तो यहाँ पे आपको मिलेंगे L5 13 मार्क्स. तो यहाँ पे 13th मार्क मिला. ये दोनों मतलब सिमिलर हैं. तो यहाँ पे 10 मार्क क्वेश्चन में ज़्यादा पापड़ बेलने, जबकि 14 मार्क क्वेश्चन में उतने पापड़ बेलने के बाद 13 नंबर मिलेंगे. अब जो 14th मार्क है ना, वो ज़रा एक्सप्लेनेशन मांगता है और उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी लिखने पे. तो अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा. अब वो कहते हैं कि जो आपने ऊपर एक्सप्लेनेशन दी है उसमें आपने डेवलप्ड इवैल्यूएशन देनी है आपको समझाने के लिए, क्योंकि यकीन लोगों को बड़े देर से होता है. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, explanation at the top of level 4 with the developed evaluation or judgment supported by relevant and accurate contextual knowledge. अंग्रेजी बहुत हैवी लिखी हुई है, मैं सिंपल अल्फाज में बताता हूँ. जो पॉइंट आपने 13 L5 13 में लिखा है उसको फर्दर डेवलप करना है एवेल्युएशन को, ताकि आप उसका इम्पैक्ट बता सकें, सिग्निफिकेंस बता सकें. तो पहले एक्सप्लेन किया यहाँ तक और फिर आगे उसका इम्पैक्ट बताना है. तो अब मैंने रोनाल्डो को यहाँ पे सपोर्ट किया ओवर मेसी, तो इसका इम्पैक्ट क्या है ये मैं बताना चाहूंगा. आगे लिखा मैंने इम्पैक्ट को लिखते हुए, दिस इज बिकॉज. अब इम्पैक्ट आ गया यहाँ पे, इम्पैक्ट या इफेक्ट या उसको फर्दर डेवलप किया, उसकी सिग्निफिकेंस को बताया. तो मैंने लिखा दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट रोनाल्डो हैज इंस्पायर्ड मोर पीपल नॉट ओनली इन फुटबॉल बट ऑल्सो इन डेली लाइफ who work hard and do not give up and no matter what, which is why students are working hard these days during exams as well. So अब मैंने फुटबॉल से रिलेट कर दिया उसके इम्पैक्ट को, कि उसका इम्पैक्ट सिर्फ लोगों के ऊपर इतना नहीं है कि वो काम में मेहनत करें, लेकिन वो फुटबॉल के अलावा एग्ज़ाम्स में, जॉब पे, हर एतबार से इसका इम्पैक्ट एग्जिस्ट करता है. तो आई होप ये चीज़ समझ आई होगी कि ऊपर चाहिए जस्टिफिकेशन और नीचे चाहिए इम्पैक्ट उसका. तो ये बेसिक चीज़ें. पहला स्टेप इन माय ओपिनियन. दूसरा स्टेप आपने साइड चूज़ करनी है, दोनों साइड्स को चूज़ नहीं कर सकते. तीसरा स्टेप आपने उसको जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफाई साथ किया. और चौथा स्टेप है आपने देन उस जस्टिफिकेशन का इम्पैक्ट बताना है ओवरऑल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन. अब अगर आपको ये समझ आ गया तो मैं वापस जाता हूँ और मैंने कुछ एग्जाम्पल्स तैयार की हुई हैं. जैसे कि अगर इस एग्जाम्पल को हम गौर से देखें तो हमें नज़र आ रहा है क्वेश्चन है, हाउ सक्सेसफुल वाज पाकिस्तान रिलेशनशिप विद यूके एंड कॉमनवेल्थ इन द ईयर्स 47 to 99. तो अब मैं यहाँ पे आपको अलहदा करके दिखाना चाहता हूँ. पहले तो मैंने स्टार्ट कैसे किया ये देखें. इन माई ओपिनियन रिलेशन विद यूके एंड कॉमनवेल्थ हैव बीन वेरी सक्सेसफुल. दिस इज़ बिकॉज, अब मैं जस्टिफाई करूँ, दिस इज़ बिकॉज UK and Commonwealth countries consistently provided financial aid to Pakistan since 1947, especially during critical times such as when Pakistan needed support during Afghan war to sustain refugees and to develop its water resources. अब ये ऊपर से मैंने नीचे कॉपी पेस्ट नहीं किया. ऊपर मैंने फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की होगी, ऊपर मैंने 3 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज़ की बात की होगी कि मार्गरेट थैचर आई और उसने पाकिस्तान को आके सपोर्ट किया. लेकिन अब मैंने उसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा लिखा कि पाकिस्तान को 1947 से यूके एंड कॉमनवेल्थ जैसे अमीर कंट्रीज़ जो हैं वो सपोर्ट करते आए, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में काम आए. यहाँ तक ये जो भी लिखा है दिस वुड बी L513 एक जस्टिफिकेशन दी. अब इसी जस्टिफिकेशन के ऊपर बिल्ड करूँगा मैं इम्पैक्ट को. तो यहाँ से यहाँ तक मैंने बताना है इसका इम्पैक्ट. तो इम्पैक्ट क्या है? इट वॉज द फाउंडेशन ऑफ दीज स्ट्रॉन्ग रिलेशंस that helped both sides to continue to work across different forums, most notably in education, because of which Pakistan
for decades followed curriculum designed by British universities like Cambridge and Oxford at school and college level through IGCSE and O-level system. This is called thinking out of the box. तो यहाँ पे अब आपने उसका इम्पैक्ट बताया कि अच्छे रिलेशन इतने हैं कि हम पाकिस्तान में ब्रिटेन का करिकुलम एंड एजुकेशन सिस्टम फॉलो करते हैं फॉर IGCSE एंड GCs. सो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. तो इसमें आप मॉडर्न एग्जाम्पल भी किसी हद तक लिख सकते हैं. ये वाली एग्जाम्पल मैंने आपके एग्जामिनर को खुद चेक करवाई थी, बारबरा मिलर को, तो उन्होंने मुझे इसको अप्रूव किया, विच इज़ वाई मैंने आपके सामने इसको रखा. अब आगे चलते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस कार्जेज वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द आउटब्रेक ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इसका L3 हो जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस कार्जेस और L4 हो जाएगा ऑल अदर रीजंस. सो जब आपने इसको लिखा, इसको लिखते हुए इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस कार्जेस का एक ही पॉइंट है और बाकी सारे L4 में लिख देंगे, 3 पॉइंट या 4 या 5 जितने भी लिखना चाहते हैं. अब स्टार्ट कैसे किया? इन माई ओपिनियन पहले तो आपने स्टेटमेंट को आंसर करना. वो कह रहे इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस कार्जेस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द आउटब्रेक ऑफ वॉर. डू यू एग्री? अब आपके अपना ओपिनियन, आप कह सकते हैं इन माई ओपिनियन Greece Carthage was the most important reason, या आप कह सकते हैं no. In my opinion, Greece Carthage was not the most important reason. Doctrine of lapse was the most important reason. तो आप दूसरी साइड पे भी बात को लेके जा सकते हैं. बहरहाल मैंने एक लिखा है यहाँ पे, उसको चेक करते हैं. In my opinion, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, Greece Carthage were the most immediate reason for the outbreak of War of Independence. As they were introduced in 1857. Greece Carthage कब introduce हुए? 1857 में. The same year as that of war itself. The other reasons were not significant or not as decisive because Doctrine of Lapse 1852 में आया था and Sati 1829 में आया था. अगर ये रीज़न होते मेन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के, तो फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो 1829 या 52 में होती, जो कि नहीं हुई, जो कि शो करता है कि डॉक्टर ग्रीस कार्जेज ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी रीज़न था. सो मैंने यहाँ पे क्या किया? उसको जस्टिफाई कर दिया. अब मैंने इसी के ऊपर फर्दर बिल्ड करना है. तो मैं कहूँगा फर्दर मोर ग्रीस कार्जेज वर नॉट मेयरली अ मिलिट्री प्रॉब्लम, इम्पैक्ट उसका कितना था, बट ऑल्सो अ डीपली रिलीजियस वन, एज दे ऑफेंडेड बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम सोल्जर्स साइमल्टेनियसली, द टू लार्जेस्ट कम्युनिटीज इन इंडिया. When religious sentiments of the entire Indian population were disrespected, it created a massive and unified uproar that made the revolt inevitable. So अब मैंने क्या किया? मैंने पहले उसको जस्टिफाई किया और फिर उसके बाद उसका बताया इम्पैक्ट. लॉन्ग टर्म में बता सकते हैं, शॉर्ट टर्म में बता सकते हैं. सो ये दो बातें अगर आपने पूरी कर ली और उसको स्टार्ट कर लिया तो हो जाएगी बल्ले बल्ले. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. तीसरी एग्जाम्पल हमारे पास ये कि 3 ऑप्शंस वाला जो क्वेश्चन आते हैं. Who of the following was the most important for the creation of Pakistan? 1 Jinnah, 2 Choer Ahmed Ali, 3 Allama Iqbal. Explain your answer with reference to all 3 of the above. अब इसमें पहले L3 L4 आपको पता होना चाहिए. तीनों में से जिसको पहले लिखेंगे वो L3 हो जाएगा और तीनों में से जिसको बाद में लिखेंगे वो L4 हो जाएंगे बाकी दोनों. सो फॉर एग्जांपल मैंने जिन्ना को पहले लिखा L3 जिन्ना, चोर अहमद अली, अल्लामा इकबाल L4 हो जाएंगे. सो तीनों में से चूज़ करेंगे कि आपको किसने पहले लिखना है और किसको बाद में लिखना है. अब ओपिनियन देना है आपने. सवाल पूछा था उसने हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो सवाल का आप जवाब देंगे. In my opinion, Allama Iqbal was the most important personality for the creation of Pakistan as he was the first among the 3 to present the idea of separate Muslim homeland in Allahabad address in 1930, and Choer Ahmed Ali following in 1933 through Now and Never, and Jinnah leading to the Lahore Resolution in 1940. तो पहली बात क्या जस्टिफाई की कि तीनों बाबों में से सबसे पहले अल्लामा इकबाल ने 1930 में अलाहाबाद एड्रेस में पाकिस्तान का आइडिया दिया और बाकी दोनों बाबों ने उन्हें फॉलो किया 1933 एंड 1940 में. इसका मतलब वो लेगेसी फॉलो करे थे अल्लामा इकबाल की. तो पहले मैंने उन्हें जस्टिफाई कर दिया. सो ये जो पहली चीज़ है ये जस्टिफिकेशन है और यहाँ पे हमें मिलते हैं मार्क्स L513 जिस तरह के आपके सामने लिखे हुए. जस्टिफिकेशन के बाद अब इसका इम्पैक्ट बताना है कि बाबा जी ने, अल्लामा इकबाल ने जो काम किया इसका क्या इम्पैक्ट था. तो आगे लिखा फर्दर मोर when Jinnah went into voluntary exile, पता होगा आपको RTC's थर्ड RTC के बाद he went into voluntary exile, he quit politics for some time. तो आगे लिखा है further more when Jinnah went into voluntary exile in London following the RTC's, it was Iqbal who had the vision and influence to write to Jinnah personally and persuade him to return to India and lead the Muslim League. अब इम्पैक्ट बताया कि अल्लामा इकबाल का इतना ऑरा था कि उन्होंने, जिन्ना ने जब क्विट की पॉलिटिक्स को तो उन्हें इंस्पायर किया कि आप वापस आएँ और उस इंस्पिरेशन की वजह से जब वो वापस आए तो उसी की वजह से वो पाकिस्तान मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर पाए और पाकिस्तान जो हमारा आज़ाद प्यारा मुल्क है उसमें आज हम आज़ादी से किसी हद तक रह पाते हैं. सो ये हमारे पास इसका इम्पैक्ट आ गया. उम्मीद है आपको स्टेप समझ आ रहे होंगे. तो आपने स्टार्ट करना है इन माई ओपिनियन आई बिलीव से.
स्टेप नंबर 2, आपने जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसको एड्रेस करना है। वो कह रहे हैं हु ऑफ द फॉलोइंग, तो आप कहेंगे फलां वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। उसके बाद फिर आपने तीसरा स्टेप है बताना है उसकी एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशन, और चौथा स्टेप है उसका इम्पैक्ट बताना है ताकि आप L5 14 मार्क्स तक जा सकें। अब ये जो छोटे छोटे चुनने मुन्ने से सवाल हैं, इनके सवालों के जवाब मैं देता हूँ, हो सकता है आपको पहले से ही पता हो। पहला है आर द 10th मार्क ऑफ द 10 मार्क एंड 13th मार्क ऑफ द 14 मार्क क्वेश्चन सेम। तो सीधा साधा जो जवाब है कि ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। सो ये यस, 13th मार्क क्योंकि जस्टिफिकेशन डिमांड करते हैं, और 10th मार्क जो 10 मार्क क्वेश्चन का है वो भी जस्टिफिकेशन डिमांड करता है। तो आप इवैल्यूएशन में एक साइड चूज़ करके उसको जस्टिफाई कर देंगे। दूसरा है हाउ डू वी स्टार्ट द कंक्लूजन, वो आपको बता दिया, आप स्टार्ट कर सकते हैं इन माई ओपिनियन से या फिर आई बिलीव से, जिस तरह मर्जी स्टार्ट करें, अपने ओपिनियन को क्लैरिफाई करना है। इसके बाद कैन वी राइट अ कंक्लूजन इफ़ वी डिड नॉट स्कोर L4 12 मार्क्स। दो बातें, इफ़ यू डिड नॉट स्कोर L4 12 मार्क्स और आपने कंक्लूजन लिखा हुआ है तो आपको L5 के मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और अगर आपने 10 पॉइंट भी लिख दिए हों लेकिन आप L4 12 पे नहीं पहुंचे तो गुड गुड गंडेरियाँ आदियाँ तेरियाँ त्यादियाँ मेरियाँ, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे चाहे जो मर्जी कर लें। इसीलिए तमाम वो स्टूडेंट्स जो थ्रू आउट मॉक्स एंड प्री मॉक्स L2s के ढेर अपने आंसर्स में पाते रहें, उनके लिए पहले तजवीज़ ये है कि आप पहले एक्स्ट्रा पॉइंट लिखें, 2-4 एक्स्ट्रा पॉइंट लिखें, और उसके बाद फिर देखें कि कंक्लूजन लिखने की ज़रूरत है या नहीं। क्योंकि अगर 12 ना होए तो फिर फ़ायदा ही नहीं है, वो पैराग्राफ तो वैसे भी वो रीड नहीं करेगा, वो ज़ाया हो जाएगा। फिर उसके बाद वो कह रहे कैन वी एग्जैक्टली रिपीट द पॉइंट एज ऑलरेडी रिटन इन L3 एंड L4। एग्जैक्टली उसको रिपीट नहीं कर सकते, हाँ उसी पॉइंट को आपको यूज़ करना पड़ेगा लेकिन फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। कैन वी डिस्कस द पॉइंट गिवन अबव इन L3 एंड L4 फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसका आंसर अभी मैंने बताया एग्जैक्टली यस, उसको डिफरेंट एंगल से आपको डिस्कस करना पड़ेगा। कैन वी सपोर्ट बोथ साइड्स इन द आर्ग्यूमेंट, तो आंसर इज बिग नो। उसके बाद what if we have explained 3 successes and 1 failure, can I support the failures in my opinion? इतने हुण गल गौर नाल सुननी है। अगर किसी महान पुरुष ने 3 सक्सेसेस लिखी हैं और उसने लिखा है एक फेलियर, तो इट इज़ ऑब्वियस कि उसने 3 सक्सेसेस लिखी हैं, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर मजबूरी है कि वो सक्सेसेस की साइड पे ही इंक्लाइन करेगा और फेलियर की साइड पे इंक्लाइन नहीं करेगा, क्योंकि उसने ज़्यादा वेटेज दी है सक्सेसेस वाली साइड को। जिस पे आपके फ़ौरन से जहन में सवाल आएगा कि अगर क्वेश्चन था फॉर एग्जांपल वॉज बैनिंग ऑफ सती द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द आउटब्रेक ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्वेश्चन मार्क एक्सप्लेन योर आंसर, तो सती का तो पॉइंट ही एक है, इसका मतलब एक ही पॉइंट है तो सती को सपोर्ट नहीं कर सकते, ना 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 ना, वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे तो सक्सेस और फेलियर दोनों अवेलेबल हैं। उसने पूछा है हाउ सक्सेसफुल, तो आप अगर सक्सेसेस ज़्यादा लिखे हुए हैं और फेलियर कम, तो आप बता रहे हैं कि मैं सक्सेसेस ज़्यादा लिख रहा हूँ, जिसका मतलब मैं इंक्लाइन करूँगा टुवर्ड सक्सेसेस ज़्यादा। तो इसलिए इस टाइप के अंदर ये जो हाउ सक्सेसफुल वाली है आपको थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ना हो कि आप फेलियर की तरफ इंक्लाइन कर जाएं 3 सक्सेसेस लिखने के बाद। 3 फेलियर लिखे होते तो फेलियर की तरफ इंक्लाइन किया जा सकता है, लेकिन बाकी सारी टाइप्स में ये एज सच उतना ज़्यादा अप्लाई नहीं होता। इसके अलावा आगे है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन L513 एंड L514। L513 के अंदर आपको इन माई ओपिनियन लिख के एक दफ़ा फिर रिपीट करते हुए जस्टिफाई करना है अपने ओपिनियन को, एंड 14 के लिए आपको उसके अंदर उसको इम्पैक्ट बताना है, उसकी सिग्निफिकेंस बतानी है, लेकिन क्वेश्चन के रेफरेंस के साथ। सो आई होप ये चीज़ें तमाम आपको समझ आई होंगी। मैंने एग्जांपल्स भी आपको बीच में दे दिए हैं ताकि आपको आराम से समझ आ जाए। थोड़ा काम जल्दी में किए, हैंड राइटिंग मेरी बहुत ज़्यादा प्यारी है, तो इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ अगर किसी को कोई समझ नहीं आई। बकाया मेरे से पूछा था एक किसी महान पुरुष ने मैं कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करता हूँ। भाई अल्लाह के बंदे, मैं शैम्पू वही इस्तेमाल करता हूँ जो मेरी बेगम ने रखा होता है बाथरूम के अंदर, बस वो इस्तेमाल कर लेता हूँ, कभी गौर नहीं किया कि कौन सा पड़ा हुआ है इतना, तो जो आता है इस्तेमाल कर लेता हूँ। बहरहाल अल्लाह आप सबको खुश रखे, कामयाब करे, और इसी तरह हंसी खुशी आप पेपर में जाएँ, टेंशन फ्री होकर पेपर में जाएँ और इंशाल्लाह जीत के वापस आएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह सोने दे हवाले।